We had started the topic of work, energy, and power. We had taken into consideration the concept of work done by a force, which is given by the dot product. And for a particular path, first you calculate the small work done by a constant force for a small displacement, and then you can integrate it throughout the whole path. For a constant force, this was displayed. The work done by the force was F cos theta and the total distance covered. Work done by weight of an object plus weight into distance if the object is moving downwards, and minus weight into distance if the object is moving upwards. See, whenever we talk about work done of an object or energy of an object, it is never considered by the conventional directions given by the x and y coordinate system that we are generally used to. जैसे कि अगर आप x और y कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अगर ये बोलो कि देयर इज अ फोर्स वेक्टर व्हिच इज लोकेटेड लाइक दिस f. नाउ हाउ वुड यू राइट दिस फोर्स वेक्टर एज प्लस f और माइनस f? तो इसमें आपको कोई दूसरे कन्वेंशन यूज करने की जरूरत नहीं है. यू डायरेक्टली से दैट सिंस f is a vector and it is acting towards the right side of the x axis, so we say that the force is positive and it is not negative. And similarly, if there is another force, let us say P, which is acting downwards, then you say we will declare this as minus P. Why? Because it is acting in the downward or the negative direction of the conventional XY axis. But in case of work done, you never calculate the sign of the work done by the conventional axis system. Work done of an object is positive if displacement and force both are in the same direction. If displacement and force are in the opposite direction, which can be like this, then in both these cases, work done will be taken as negative. If displacement and force both are in the same direction, even in the opposite side, still the work done will be positive. This is something that you have to remember. For energy and work done, you never calculate the work done, the sign of the work done by the sign of the coordinate axis. You never do that. All you have to check is whether the displacement s and force f are in the same direction or not. तो जैसे कि इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों पीछे की तरफ को लग रहे हैं, तो भी वर्क डन पॉजिटिव है. इस केस में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में से आगे को लग रहे हैं, तो भी वर्क डन पॉजिटिव है. अब इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, फोर्स पॉजिटिव है, लेकिन वो नहीं देखेंगे अपन. अपन सिर्फ ये देखेंगे कि क्या ये उल्टे हैं कि सेम डायरेक्शन में, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर एंड देयरफॉर वर्क इज नेगेटिव. अब डिस्प्लेसमेंट आगे को है, फोर्स पीछे को है, उससे हम नहीं देखेंगे कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव हुआ कौन सा नेगेटिव हुआ. वी डोंट जज बाय दैट. वी सिंपली सी whether they are opposite to each other or not. If they are both supporting in the same direction, then work done is always positive. And if in any direction they are opposite to each other, then work done is always negative. और वही सेम केस लेकर के अपन ने वर्क डन बाय वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट का भी कॉन्सेप्ट निकाला कि अगर देखो वेट तो हमेशा नीचे को लगेगी, ये तो फिक्स हो गया क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है. अब आपकी दो केस क्या होगी कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है या डिस्प्लेसमेंट नीचे को है. अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर को हो गया तो आपकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इस केस में तो हो गया नेगेटिव. और अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो आपकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गई, तो इसीलिए ये पॉजिटिव हो गया. तो वर्क डन का कॉन्सेप्ट, इट इज ऑलवेज the sign of the work done or energy is always taken by whether the displacement is whether the force and the object are opposite to each other or in the same direction. Similarly,
Before coming to spring force, you have already covered the concept of kinetic energy. And kinetic energy for the simplest case of translatory motion is given by half mv square. Now just think about all the cases in which a body can move. भाई एक बॉडी आपने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट ली तो वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में आगे पीछे ऊपर नीचे साइड में ही तो चलेगा और कहाँ जाएगा. ठीक है. तो अब आप एक थ्री डायमेंशन स्पेस भी छोड़ दो, आप तो टू डायमेंशनल स्पेस ले लो. टेक द एक्स वाई प्लेन and consider an object of mass m which is moving downwards with a velocity of v, and then consider the case when the same mass is moving leftward with the velocity v. Mass again taken in the two dimensional place, moving at some angle with a velocity v, or take any random direction. Now there is a concept that I am going to tell you. You tell me whether what I am speaking is true or false. The statement I am making is the kinetic energy of mass m, no matter what the direction of velocity is, whether it is in the negative y direction, whether it is in the negative x direction, whether it is at an angle, making an angle with both the y and axis, this direction, this direction, this direction, as long as the mass is m and the magnitude of velocity is v, the kinetic energy will always be positive and will be given by the expression of half mv square. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? यानी मैंने एक तरह से ये बोल दिया कि काइनेटिक एनर्जी के कैलकुलेशन में दिशा का कोई मतलब ही नहीं है. यस Is this सर, statement true or false? Yes, this ट्रू है. statement is 100% true because you have v square. तो अगर आप दिशा के कारण अगर कोई साइन चेंज करते भी हो, देखो मास पे तो प्लस माइनस कभी लगेगा ही नहीं, ये तो आपको पता ही है. यू विल नेवर पुट अ नेगेटिव साइन ऑन मास. मास तो मास है. नेगेटिव अगर कहीं आनी है तो वेलोसिटी पे आएगी, और वेलोसिटी नीचे को है तो नेगेटिव ले लो तो स्क्वायर हो जाएगा तो फिर पॉजिटिव. ऊपर ले लो, साइड में ले लो, नीचे टेढ़े मेढ़े कैसे भी ले लो वेलोसिटी इन अ थ्री डायमेंशनल स्पेस, you try to take the velocity in whichever direction you please. Since there is a square sitting on the velocity, it will always come out as positive. तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है. ठीक है. ओके, दिस वाज अ स्मॉल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन. नाउ once again going ahead with our revision, work done by the spring force is always equal to half of k x square. ये याद रखना. Where x is what? X is the stretch produced in the spring. भाई आपने ये कहा कि आपकी स्प्रिंग ओरिजिनली इस पोजीशन पे थी, तब बिल्कुल भी खिंची हुई नहीं है स्प्रिंग, ना दबी हुई है ना खिंची हुई है, स्प्रिंग इज एट रेस्ट. नाउ यू स्ट्रेच्ड द स्प्रिंग बाय अ डिस्टेंस ऑफ x. तो x क्या हो गया? x इज द स्ट्रेच प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग, नॉट द डिस्टेंस बाय द बॉडी. उस तरीके से नहीं कैलकुलेट किया जाता कि बॉडी कितनी मूव हुई. हाँ, ऑब्वियसली यू कैन अप्लाई द लॉजिक कि चूंकि बॉडी इससे कनेक्टेड है तो बॉडी जितनी मूव होगी उतना ही स्ट्रेच एंड स्प्रिंग होगा. लेकिन हमेशा मोशन से नहीं जज करना है, आपको स्ट्रेच इन स्प्रिंग से उसको जज करना है. ठीक है. सो वॉट एवर द स्ट्रेच और कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग इज, यू टेक दैट एज एक्स, again you square it and you get half kx square. So using the same logic of kinetic energy, can I say that the energy stored in a spring can never be negative? ये स्टेटमेंट सही है क्या? एक स्प्रिंग में जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है, दिस इज योर स्ट्रेन एनर्जी. ये मैंने आपको कल बताया था. स्ट्रेन एनर्जी कह लो या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कह लो, कुछ भी कह लो. I am again making a statement that strain energy of a spring can never be negative. Yes, sir. Absolutely correct. Once again, K तो उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसको नेगेटिव होने का कोई सवाल ही नहीं होता. दैट इज अ कांस्टेंट एंड दैट इज सिंपली अ स्टेटमेंट व्हिच गिव्स कि पर यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा. अब नेगेटिव होने की गुंजाइश कहां से आती है? सिर्फ एक्स से ही होती है, और एक्स के ऊपर स्क्वायर बैठा हुआ है. तो इसीलिए स्प्रिंग को आप दबा के पकड़ो
तो भी पॉजिटिव स्ट्रेन एनर्जी, स्प्रिंग को खींच के पकड़ो तो भी पॉजिटिव स्ट्रेन एनर्जी. So this is the concept of strain energy of a spring. Then we came to work done by a couple or moment. तो इसमें मैंने बताया था कि आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है. डोंट गो फॉर द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड डेरिवेशन एंड ऑल. आप तो सिंपली ये देखो, वर्क डन बाय अ लीनियर फोर्स मूविंग बाय अ डिस्टेंस ऑफ x इज f into x. सो व्हाट विल बी द वर्क डन इन रोटरी मोशन? x की जगह पे थीटा आ जाता है और फोर्स की जगह पे टॉर्क आ जाता है. So work done in rotary motion, pure rotary motion, is torque into theta, just like force into displacement, because this is the equivalent of force in rotary motion and this is the equivalent of displacement in rotary motion. तो टॉर्क इंटू थीटा कह लो, या फिर अगर आप एक्सटर्नली अप्लाइड टॉर्क को टॉर्क ना बोल करके मोमेंट बोल रहे हो तो एम इंटू थीटा. किसी भी तरह से कह लो, ठीक है. देन वी केम टू पावर. पावर के लिए हमने ये कहा कि पावर इज द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड और एट विच वर्क इज परफॉर्म. तो बेसिकली आपको करना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी निकालनी है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी डी यू बाई डी टी हो गया. अब यू क्या चीज है या डी यू क्या चीज है, एफ इंटू डी आर है. डिवाइडेड बाई डी टी करेंगे तो डी आर बाई डी टी इज वेलोसिटी. सो बेसिकली पावर इन लीनियर मोशन कैन ऑलवेज बी कैलकुलेटेड बाय फोर्स इंटू वेलोसिटी. एंड पावर इन रोटरी मोशन, इसके काउंटर पार्ट निकाल लो. फोर्स का काउंटर पार्ट टॉ हो गया, वेलोसिटी का काउंटर पार्ट ओमेगा हो गया. सो टाउ इंटू ओमेगा इज पावर इन वॉट्स in rotary motion, and F into V is power again calculated in watts in linear motion. Efficiency की बात की थी, output work by input work or power output by input. Generally, you remember efficiency only as output by input. In any case, एनर्जी हमने कहा था किस किस प्रकार की एनर्जी होती है, बहुत तरह की एनर्जी होती है. इलेक्ट्रिकल, हीट, लाइट, मैकेनिकल, केमिकल, lot of types or varieties of energy are there. But in engineering mechanics, we will be studying about only mechanical energy. अब मैकेनिकल एनर्जी के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. काइनेटिक एनर्जी, ये आपको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच के नाम से ज्यादा प्रचलित है. But you have to know that mgh is only gravitational potential energy, and you generally put a small g suffix here to show that mgh is a potential energy but arising due to gravitation. There is another kind of potential energy which is called as strain energy, और strain energy elastic bodies के अंदर store होती है. For the simplest example in day to day life of strain energy is, आपकी जो इरेजर होती है, रबर जो है, that is an elastic body. You can press it with your fingers also. तो उसको अगर आप दबा के पकड़ रहे हो तो बेसिकली आपने उस रबर में स्ट्रेन एनर्जी के नाम से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर ली. तो इसको कभी कभी अपन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलास्टिक बॉडी के नाम से भी जानते हैं. तो या तो इसके अंदर एक सफिक्स छोटा सा ई लगा दो, और if you choose you can put a suffix s also to represent कि this is the potential energy due to straining of an elastic body and therefore strain energy. ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी है. तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तो इस तरह से करी जाएगी. देखो, द क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज लाइक दिस. मैकेनिकल एनर्जी can only be of two types. It is either kinetic energy or potential energy. That's all. Main कहानी तो यही खत्म हो जाती है. But further bifurcating, potential energy can be due to gravitation, which we write as mgh, or it could be due to the compression or extension of an elastic body, and that we call as potential energy due to straining of elastic body or potential energy elastic. Another term for this is strain energy.
तो ये स्ट्रेन एनर्जी जो है ये एक प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी की है. एंड इफ यू टॉक अबाउट अ स्प्रिंग, then the strain energy can be directly put into formula as half kx square. ये इसका फॉर्मूला है. काइनेटिक एनर्जी किस किस प्रकार की हो सकती है? If you want, you can further bifurcate kinetic energy as linear or translational and rotational. Translational kinetic energy is directly half mv square. Rotational kinetic energy is half of I omega square. And kinetic energy can be purely translational in some cases if a body is simply moving forward. It can be purely rotational if the body is not moving forward but simply rotating at its own position. Or it could be a combination of both translational and rotational kinetic energies, as explained to you in the previous case, where a cylinder is rolling on a cylinder or a disc, any perfectly round shape rolling on a flat surface. So in that case, the center of gravity of the cylinder is moving forward. So it will have half mv square linear kinetic energy. But at the same time, the whole cylinder itself is rotating about the center of gravity. So it will have rotational kinetic energy also. So basically, something rolling on a flat surface is an example of combination of linear and rotational motion. And therefore, the kinetic energy will be sum of these two types of kinetic energies. Okay. And now, finally, we come to the new topic that we are going to discuss today. Okay. Work done, sorry, principle of work and energy. Hmm. Now see, principle of work and energy. This content I have taken from the book, in which what they are saying is you have to consider a particle which was initially at point A1 and it is moving along this curved path. The curved path is taken to take a general path. Otherwise, to ease your conceptualization, you can simply take a straight path also. But a textbook will generally take a more generic approach so that it is applicable in all the cases. Otherwise, even if in your exam, if you are uncomfortable with curved features and the derivation, because you have to take components and all, you can simply represent it with a linear motion. But anyway, let us go to the concept. What is the principle of work and energy? यानी वर्क और एनर्जी को रिलेट करने वाली कोई लॉ अब आने वाली है अपने सामने. So initially the object is at point A1 and then after some time it reached point A2 by traveling along this path. Now while it was traveling and it was at this position, you took a photograph of the object. And then from the photograph, you drew the components of the force acting on the object. The force vector acting on the object was F. And at this particular point where you took the photograph, F was making an angle of alpha with the tangential direction to the curvature. And if this is the tangential t direction, then perpendicular to it will be the normal direction. But you know that work is only done by the force in the direction of the force. So there is no work done in the normal direction. So normal direction is nothing of interest to us. We are only interested in the tangential direction. So you said that let us say that at this instant, when you are studying the object, the velocity in the tangential direction was v. Okay, that is given. You take a small displacement ds in the tangential direction. So what will be the work done? If F is the overall force vector, then in the tangential direction, let us say that the component of F is F suffix t. And if you further want to know how much will be F suffix t, I will simply say it will be F cos alpha.
यही मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ही वर्क कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स भी है एफ एन, और आप पूछें कि एफ एन कितना है, तो मैं सीधे सीधे बोल दूंगा एफ एन इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। लेकिन एफ साइन थीटा वाला जो एफ एन कंपोनेंट है, ये तो वर्क कर ही नहीं रहा। तो आपने एफ को दो टुकड़ों में तोड़ा, एफ एन और एफ टी, जिसमें एफ एन तो कोई वर्क नहीं कर रहा। क्यों? क्यों नहीं वर्क कर रहा? क्योंकि एफ एन का डायरेक्शन डी एस के डायरेक्शन के सीधे परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर साइड में वर्क होता ही नहीं है। वर्क किससे होता है? एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में या उल्टे डायरेक्शन में हो तो वर्क होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स बिल्कुल ही ऑपोजिट है तब तो नेगेटिव वर्क हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अगर पॉजिटिव, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो फिर पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज एफ टी इंटू डी एस क्या चीज हो गई? मेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हो गई। दिस आई कैन कॉल एज स्मॉल वर्क डी यू इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। लेकिन वर्क के लिए कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है, एनर्जी है वो। ठीक है, एनीवे anyway, अब देखो, अब इससे आगे इन्होंने कहा कि अब एक तरह से यहां पे इन्होंने एफ टी लगा दिया है हर जगह पे। इन द फर्दर डेरिवेशन एवरीवेयर यू विल बी सीइंग एफ टी बीइंग यूज्ड। व्हाई? बिकॉज एफ एन इज नथिंग टू बी बॉदर्ड अबाउट, क्योंकि एफ एन की दिशा में पूरे पाथ पे जहां जहां पर भी एफ एन बन रहा होगा, वो अपने किसी काम ही नहीं आ रही है, वो वर्क ही नहीं कर रही है। पूरा वर्क जो है वो एफ टी कर रहा है। तो अब जैसा मैंने आपको कहा था कि टू सिंप्लीफाई योर प्रॉब्लम और योर डेरिवेशन, यू कैन एलिमिनेट दिस कर्व्ड पाथ एंड यू कैन सिंपली टेक अ स्ट्रेट पाथ। भाई जब आपने कर्व्ड पाथ लेके क्या हासिल किया? ये नॉर्मल कंपोनेंट बना के दिखा दिया, और फिर एंड में जाके डिक्लेयर किया कि नॉर्मल कंपोनेंट से तो वर्क होता ही नहीं है, हम तो सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट लेंगे, और यहाँ पे एफ टी लेके काम करना स्टार्ट कर दिया। तो उसकी बजाय आप एक स्ट्रेट पाथ भी ले सकते हो, और उस पे एक ऑब्जेक्ट को यहां बना दो, और उसका फाइनल पॉइंट यहां बना दो, और अब आप एफ टी और एफ एन ना लेके सीधे ये बता दो कि इस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ एफ फोर्स काम कर रही है, और ये इतने डिस्टेंस तक चल रही है। लेट अस से इट इज मूविंग बाय अ डिस्टेंस ऑफ x एंड f इज द फोर्स, और हो सकता है f कांस्टेंट और नहीं हो। जैसे कि इस केस में एफ टी जो है ये कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है कांस्टेंट? भले ही f कांस्टेंट हो, आपकी एंगल अल्फा जो है वो पाथ के अलोंग चेंज होती जा रही है, तो इसीलिए f cos अल्फा कांस्टेंट नहीं रहेगा, और इसीलिए एफ टी कांस्टेंट नहीं रहेगा। बट दैट शुड नॉट बॉदर अस। वी आर टेकिंग du एंड देन वी विल इंटीग्रेट इट। ठीक है, यही काम करना है। तो अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। आई विल सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम फॉर यू। एक्स डिस्टेंस तक एक पार्टिकल चला, जिसपे कि एक कांस्टेंट या वेरिएबल फोर्स एफ लगी। इससे अपने को मतलब ही नहीं है एफ कांस्टेंट है या नहीं है। आप तो मान लो कि इस इंस्टेंट पे एफ फोर्स दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन ने ये कहा कि क्या मैं एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं क्या? इस पार्टिकल का मास m है, और इस इंस्टेंट पे इसकी एक्सेलरेशन a है। अब मेरे को इससे भी कोई परवाह नहीं है कि एक्सेलरेशन बाद में जाके चेंज हो रही है कि नहीं है। ऑब्वियसली अगर f चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा, बट आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। आई सिंपली वांट टू आस्क यू, अभी हम वर्क की बात करें, चाहे काइनेटिक्स की बात करें, चाहे काइनेमेटिक्स की बात करें, कुछ भी करें, कैन आई राइट दिस इक्वेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ ट्रेवल ऑफ मास m और नॉट? दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ, और न्यूटन सेकेंड लॉ तो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह हर समय लॉ है ये। we know it is applicable. So I can write F is equal to ma, where m is the mass and a is the instantaneous acceleration at any point of time for a mass which is accelerating. ठीक है, अब इसमें क्या किया इन्होंने? एक्सेलरेशन को सबसे पहले तो इन्होंने एक्सप्रेस किया m इंटू dv by dt. I can do that also because acceleration is the first derivative of velocity. अब उसके बाद इन्होंने एक और काम किया, इन्होंने F इज इक्वल टू m इंटू डीवी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी कर दिया। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें आप पहले कर चुके हो, तो इसीलिए मैं ज्यादा इस पर ड्वेल नहीं कर रहा। आई एम नॉट ड्वेलिंग ऑन दीज थिंग्स।
You have done such sort of things earlier also. ठीक है, dv by dt को आप ऐसे भी लिख सकते हैं. And why are we writing it like this? Because we want an expression. What is dx by dt? dx by dt क्या है, कोई बताओ? velocity. It is velocity. So this becomes m into v into dv by dx. So basically what we are saying कि मैं न्यूटन के लॉ को F इज इक्वल टू एम ए लिखने की बजाय अगर मैं F इज इक्वल टू एम वी डीवी बाई डी एक्स लिखूं तो भी चलेगा. दिस इज ऑल्सो न्यूटन सेकेंड लॉ विदाउट एनी चेंज एट ऑल, एग्जैक्टली द सेम थिंग. ठीक है, अब लेकिन इन सब चीजों से मैं कर क्या रहा हूं अब आप देखना ये. ठीक है, dx को उस तरफ ले गया, आई मल्टीप्लाइड इट विथ x, सॉरी f. तो f इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एम वी डीवी. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ये कहा मेरा पार्टिकल पॉइंट वन से ट्रेवल करके पॉइंट टू तक गया. पॉइंट वन पे मेरी वेलोसिटी v1 थी और पॉइंट टू पे मेरी वेलोसिटी v2 थी. अब आगे बात करें. ठीक है, तो इसने कहा कि पॉइंट वन से पॉइंट टू तक गया है. So what we can do is integrate both sides from 1 to 2. तो चूंकि यहाँ पे dx है तो यहाँ पे x1 to x2 आएगा इक्वल टू इंटीग्रल m v dv. चूंकि यहाँ पे dv है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन v1 से v2 आएगा. इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं दोनों साइड्स को. ठीक है, आगे देखें इससे क्या फर्क पड़ता है. f के बारे में हमें जानकारी नहीं है कि कांस्टेंट है कि वेरिएबल है. कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और अगर ये x पे निर्भर करती है या उस x के ऊपर डिपेंड करती है तो फिर ये इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ x. बट वी डू नॉट बॉदर अबाउट इट. वी सिंपली से दैट f dx x1 to x2 इंटीग्रल क्या चीज है, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम वन टू टू. मैं सीधे सीधे इसको ऐसे डिक्लेयर कर देता हूं क्योंकि मेरे को ये पता नहीं है कि f कांस्टेंट है कि नहीं है. अच्छा, अगर f कांस्टेंट होती तो मैं क्या करता इसके इंटीग्रेशन में. अगर f कांस्टेंट होती तो पहले ये देखते हैं. अगर f कांस्टेंट होती तो मैं f को बाहर ले लेता. देन इंटीग्रल x1 टू x2 dx. क्या आता है इसका आंसर, f इंटू x2 माइनस x1 विच इज वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम वन टू टू. बस सीधे सीधे ये आ जाती. लेकिन इफ f इज अ फंक्शन ऑफ x इट कैनॉट बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रल. तो उस केस में हम तो ये कह रहे हैं कि भाई हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो एक्सप्रेशन चाहिए. x1 से लेके x2 तक f डॉट dx को इंटीग्रेट करोगे तो एक्सप्रेशन कुछ भी आए लेकिन होगा तो वो वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम वन टू टू ही ना. तो मैंने इसको सीधे सीधे u1 to 2 लिख दिया. अभी मेरे को इतने से ही मतलब है. ठीक है, इक्वल टू. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस एट द राइट हैंड साइड. मास तो अभी फिलहाल चेंज हो नहीं रहा. अपना सिनारियो चेक कर लो वापस से. देयर इज अ पार्टिकल ऑफ मास m, उसकी वेलोसिटी v1 से v2 चेंज हो रही है. f शायद चेंज हो रहा है, x डिस्टेंस मूव कर रहा है, लेकिन 1 से लेकर 2 पे आने पे मास थोड़ी चेंज होगा. मास तो मास ही है, इट इज स्टिल m. So I can take mass out of the integration sign because I am 100% confident that it is constant. So m integral v1 to v2 of v dv. इसका जरा इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा. What is the integration of this part? V2 upon 2 minus V1 upon 2. v square by 2 हाँ सॉरी. v1 to v2 यही आएगा. तो अब मैं इसको वापस से री एक्सप्रेस करूं. द वर्क डन in moving the object from point 1 to 2 must be equal to m v2 square by 2 minus m v1 square by 2. सही है क्या? Re-expressing it in a more convenient expression. The work done in moving the object from point 1 to 2 is half of m v2 square minus half of m v1 square. Or in other words, it is nothing but the kinetic energy at point 2 minus kinetic energy at point 1. Do you get this?
The work done in moving the object from point 1 to 2 is nothing but the final kinetic energy. This is the final point. This is the initial point. So basically what I'm saying is, अगर मैं कहीं पर भी F is equal to ma लिख सकता हूं पूरे ब्रह्मांड में किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए किसी भी वक्त, तो इस पूरे डेरिवेशन को वापस से एक बार फॉलो करो। ये पूरा 100% इट इज एप्लीकेबल एट ऑल पॉइंट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स एट ऑल टाइम्स। तो जिस तरह से F इज इक्वल टू एम ए एक फंडामेंटल नियम के रूप में आपने याद किया है, तो आपको इसका एक दूसरा रूप मैंने दिया है और कुछ नहीं किया है। सो व्हाट इज दिस दैट वी स्टार्टेड आउट विद? द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, थियोरी नहीं है। थियोरी होती, कई सारी थियोरी होती है, ठीक है। आइंस्टाइन ने कोई थ्योरी दी, न्यूटन ने कोई थ्योरी दी, लेकिन जब वो थियोरी पूरे ब्रह्मांड में हर वक्त हर समय हर चीज पे जब एप्लीकेबल हो जाती है, तो थियोरी गेट्स कंफर्म्ड इनटू अ लॉ और अ प्रिंसिपल। तो जब आपको न्यूटन सेकंड लॉ करके दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि अब वो थ्योरी नहीं रही, इट इज अ प्रिंसिपल एप्लीकेबल एवरीवेयर एट ऑल टाइम। तो ये वर्क एंड एनर्जी का जो प्रिंसिपल है, ये बेसिकली F इज इक्वल टू एम ए का एक दूसरा स्टेटमेंट है। ये देखो, ये वही सेम डेरिवेशन है जो मैंने आपको अभी करके दिखाया। आप उसमें स्ट्रेट लाइन में मैंने ये टेंजेंशियल कंपोनेंट वगैरह हटा दिया आपके कन्वीनियंस के लिए। लेकिन अगर आप इस डायग्राम के साथ इस इतनी सी बात को अगर डायरेक्टली एफ टी इज इक्वल टू एम ए टी करके चालू कर लो, तो बाकी पूरी की पूरी कहानी वही सेम चीज है जो मैंने आपको अभी लिख के बताई। और ये देख लो, कुल मिला के बात यही आ गई, that the work done in moving the object from point 1 to 2 is nothing but the change in kinetic energy at the final and the initial position। बस ये है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। और अब आपको इसका डेरिवेशन तो मैंने बता ही दिया, ये कोई बहुत मुश्किल डेरिवेशन नहीं है, छोटा सा डेरिवेशन है, यू कैन रिमेंबर दैट। और डेरिवेशन के साथ में ये जो एक्सप्रेशन है इसको रखना है, you have to remember this expression, the expression which says that the work done is related with kinetic energy, like this। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को इस बुक के अंदर टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये अभी किया जा रहा है। सो वेन एवर यू सी टी इन योर नोट्स, ये नोट्स आपको जो दिए हैं, यू थिंक दैट दिस इज काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को वो वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट when you write in your exam, you don't have to make use of T and V। आप पोटेंशियल एनर्जी को PE लिख लो और काइनेटिक एनर्जी को KE लिख लो, जैसा आपको कन्वीनियंट ज्यादा लगेगा, ठीक है। एनीवे, दिस इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब मैं अगर रोटरी मोशन में अगर बात करूं कि हाउ डू आई अप्लाई वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन रोटरी मोशन, तो मैं ये कह सकता हूं कि इफ देर इज समथिंग विच कैन बी रोटेटेड, जैसे कि एक व्हील ले लिया आपने, ठीक है, और वो व्हील को आपने इस इनिशियल पोजीशन से रोटेट किया और उसको इस फाइनल पोजीशन तक लिया है पॉइंट 2। हाउ डू यू अप्लाई वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन दिस? तो आप ये कहोगे, what is the total amount of work done in moving or rotating the wheel through an angle theta so that it changes its position from point 1 to 2? If you can calculate it as u1 to 2, then it must definitely be given by the change in kinetic energy at point 2 and point 1। फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर। Just like you had half mv2 square and half mv1 square, तो रोटेशनल मोशन में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाने के लिए आपको सिर्फ ये रिप्लेसमेंट करना है, इसका डेरिवेशन अलग से नहीं करना, ठीक है। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अब अपन यूज करेंगे आगे। आपको अगर कोई भी रैंडमली बस ये पूछ ले कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बताओ, तो आपको तो सिर्फ इतनी सी बात करनी है, पॉइंट 1 से लेकर के पॉइंट 2 तक ऑब्जेक्ट गई,
कैसे भी ले जाओ टेढ़े मेढ़े रास्ते से, ठीक है। इसमें पहले तो निकालो 1 से लेके 2 तक चलने में कितना वर्क डन हुआ, and this will 100% be equal to, let us say that the velocity at point 1 is v1 and the velocity at point 2 is v2। तो सीधे सीधे पार्टिकल का मास m है, तो हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, ये पक्का आएगा, हर जगह आएगा, हमेशा आएगा, इररिस्पेक्टिव, चाहे फ्रिक्शन है चाहे नहीं है, चाहे स्पेस में ले जाओ चाहे धरती पे ले जाओ चाहे पानी में ले जाओ, कहीं भी कर लो, ये एक सिद्धांत ही है एक तरह से। क्योंकि ये क्या चीज है, आपने डिराइव डिराइव तो क्या किया है आपने, सिर्फ उसके रूप को बदला है, एफ इज इक्वल टू एम ए को के रूप को बदला है और कुछ नहीं किया है। एक्सेलरेशन को डीवी बाई डी टी को फिर दो में स्प्लिट किया, उधर ले गए इंटीग्रेट किया, उससे क्या फर्क पड़ा, आपने इस नियम के ऊपर कुछ कपड़े वपड़े पहना दिए, बस यही तो किया है। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट एफ इज इक्वल टू एम ए एंड नथिंग एल्स। तो एक दूसरा रूप बन के आ गया आपका, that the work done on any object anywhere must be equal to the change in its kinetic energy, that's all। ये इसका स्टेटमेंट भी हो गया। तो अब आपको स्टेटमेंट अगर आपको पता करना है तो इसके लिए भी रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट लुक एट दिस इक्वेशन, द स्टेटमेंट यू कैन क्रिएट योरसेल्फ। क्या स्टेटमेंट रहेगा, जैसे एक छोटा सा आपके 4 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं आराम से, आरटीओ और मिड टर्म दोनों में, स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, सिंपल स्वीट क्वेश्चन। तो क्या करोगे, स्टेट करना है मतलब उसका स्टेटमेंट लिखना है। द स्टेटमेंट कैन बी सिंपली रिटन एज द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी पॉइंट 1 to 2 will always be equal to the change in its kinetic energy। और उसके बाद ये इक्वेशन लिख दी, बस स्टेटमेंट हो गया। और प्रूफ के लिए क्या करोगे, प्रूफ के लिए आपके पास मैंने जैसे कहा दोनों चॉइस है, इधर यू ड्रॉ दिस फिगर और इसमें टेंजेंशियल नॉर्मल सब दिखा के फिर टेंजेंशियल पे पूरा काम करके दिखा दो, या फिर अपनी कन्वीनियंस के लिए सिर्फ इतना सा फिगर बना दो, दिस वन। सर हाँ, सर वो उसमें S1 S2 डिस्प्लेसमेंट दिखा है इसमें कर्व पाथ पर। नहीं, ये S1 जो है, S1 S2 जो है ये इस कर्वेचर को रिप्रेजेंट किया है बस, और कुछ भी नहीं है। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट को जो है ना x की जगह पे s ले रहा है, बस इतना सा ये काम किया है। ये देखो यहाँ पर भी ds बाई डी टी, dv बाई ds, ये सारी चीजें आ रही है ना, अपन ने x ले लिया था, और यहाँ पर चूंकि x और y काम करेंगे नहीं क्योंकि कर्व्ड पाथ है, तो इसीलिए इन्होंने उसको s ले लिया, बस इतना ही है, कोई फर्क नहीं है। यस सर। ठीक है, तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हो गया। एंड नाउ लेट अस कम टू कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। अब ये इस बुक में अच्छी तरह से दिया हुआ है, सो आई डेंट फील एनी नीड to make any further explanation on my part। If you read this paragraph, you will definitely understand the concept of conservative and non-conservative systems. And from that arises the concept of conservative forces and non-conservative forces। अब ये conservative का मतलब क्या है, सिर्फ इतना सा समझना है, ठीक है। The work that is performed on a system to move it from one configuration to another में डिपेंड। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन की बात क्या की गई है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं, आप उसको ऊपर उठाओ, नीचे रखो, आप उसको आगे ले जाओ, आप उसको पीछे ले जाओ, या आप उसको एक एंगुलर पाथ पे ले जाओ, या एक रैंडम पाथ ले लो, कुछ भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे सब जगह चेंज हो रहा है। तो इसलिए अपन इन मूविंग इट फॉरवर्ड, इन मूविंग इट बैकवर्ड बोलने की बजाय इन्होंने एक वर्ड यूज कर लिया, कन्फिगरेशन। मतलब इनिशियल कन्फिगरेशन यहाँ थी, फाइनल कन्फिगरेशन यहाँ है। अब ये कुछ भी हो सकती है, अगर आप ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से ले गए, देन इनिशियली द कन्फिगरेशन वाज लाइक दिस एंड फाइनली द कन्फिगरेशन वाज लाइक दिस। अब इसके अलावा कन्फिगरेशन के कॉन्सेप्ट में एक चीज और आती है, जैसे कोई इलास्टिक बॉडी है, आपने एक लचीली रॉड ले ली, ठीक है। व्हाई आर वी यूजिंग द वर्ड कन्फिगरेशन हियर, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस।
एक इलास्टिक रॉड ले ली, मानो रबड़ की रॉड है ये, ठीक है, स्टील की भी नहीं। अब इस इलास्टिक रॉड की मेरे हाथ में आने के बाद मैं इसकी क्या क्या हालत कर सकता हूँ? मैं चाहूँ तो इसको खींच सकता हूँ, आई कैन एक्सटेंड इट, आई कैन कंप्रेस इट, आई कैन बेंड इट। अब देखो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हो गई। तो ये कॉन्फ़िगरेशन वर्ड इसीलिए यूज किया जाता है कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट इसमें बात कर लो, तो इलास्टिक बॉडी, रिजिड बॉडी, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, मूविंग इन अ कर्व्ड लाइन, बेंडिंग, कंप्रेसिंग, स्ट्रेचिंग, ये सारे केस एक साथ ही कवर हो जाते हैं। मतलब आप सिर्फ किसकी बात कर रहे हो, पहले कैसा था और बाद में कैसा है। तो ये दो स्टेट हो गई। सो द मोस्ट कन्वीनियंट इंग्लिश वर्ड टू कवर ऑल दीज सिनारियोज इज कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको ये थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट मिलता है ना इंजीनियरिंग में, उसकी मैंने आज एक परिभाषा अच्छी तरह से समझा दी है, ये कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है एंड व्हाई डू पीपल यूज दिस वर्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। सो अ सिस्टम व्हेन यू मूव फ्रॉम वन कॉन्फ़िगरेशन टू अनदर may depend on the path on which the system moves। अब देखो ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ इस पाथ पे आधारित है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब देखो, if we drag a block along a path on the floor, the work we perform on the block depends not only on where we start and stop, but also on the path on the floor। ठीक है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे मैं एक ब्लॉक को जमीन पे खींच करके यहां से यहां तक लाया, स्ट्रेट लाइन पे लाया। ठीक है। अब उसके बाद मैंने इस पाथ को ऐसे एक साइनोसॉइडल पाथ पे मूव कराया और अब वापस से इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले आया। अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो पहला केस और दूसरा केस सेम था, बट विल द वर्क डन बाय मी बी सेम और डिफरेंट? यू टेल मी। डिफरेंट सर। डिफरेंट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक लाने में मैंने इसके ऊपर कितना डिस्टेंस मूव किया, बाय फोर्स इनटू डिस्टेंस, कितने टाइम तक फोर्स लगती रही मेरी, वो इस केस में और इस केस में अलग अलग है। सो द वर्क डन इन मूविंग अभी भी, लेकिन पॉइंट वन और पॉइंट टू तो वही है। ये देखिए एग्जैक्टली सेम है, पॉइंट वन और पॉइंट टू दोनों केसेस में वही के वही है, लेकिन मैं वन से लेकर टू तक कैसे आया ये फर्क पड़ रहा है। ठीक है। तो मैं इस सेकंड वाले केस में ये इन सारे पॉइंट्स के ऊपर से गुजरा है, ये ब्लॉक इन सारे पॉइंट्स के ऊपर से गुजरा है, तो इतने ज्यादा टाइम तक फोर्स लगी है। और पहले वाले केस में बस सीधे सीधे आ गया यहां तक, तो कम टाइम तक फोर्स लगी है। तो कुल मिलाकर के मेरी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हुई सेकंड केस में फर्स्ट केस के मुकाबले। एंड देयरफॉर व्हेन आई से दैट इन मूविंग द ब्लॉक फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू I have done less amount of work in case number one and more amount of work in case number two। तो ये इस प्रकार का सिस्टम जो हो गया, ये क्या हो गया? नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम हो गया। So what is the identifier, or how do you identify a non conservative system and a conservative system? Any system in which the work done depends on the path is called as non conservative system, and any system in which the work done does not depend on the path but only on the initial and final points is called as a conservative system। अब देखें कि ये तो आपने नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम का एग्जांपल देखा, दिस इज नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। तो कंजर्वेटिव सिस्टम का एग्जांपल क्या होगा? Conservative system is one for which work on the system in moving from one configuration to another does not depend on the path। जो कि मार्ग पर आधारित ना हो, वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के ऊपर आधारित हो, उस चीज को अपन कहते हैं कंजर्वेटिव सिस्टम। एग्जाम्पल क्या है? इफ वी लिफ्ट अ बॉडी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, the work we perform on the body depends only on the change in elevation h।
अब आप सोचोगे कि हो सकता है आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे कि यार ये क्या कैसे हुआ ये। तो इसका एग्जांपल देता हूं। केस नंबर 1, अपन वर्क डन निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या किया है केस नंबर 1 में, यू पुट अ पॉइंट हियर, यू पुट अ पॉइंट हियर, और एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक लिफ्ट करो। अच्छा, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज ओनली ग्रेविटी इन्वॉल्व, ठीक है। इसको आपने लिफ्ट किया एंड यू प्लेस द ऑब्जेक्ट हियर। व्हाट इज द हाइट? लेट अस से द हाइट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज h। वर्क डन कितना हो गया, मैं सीधे ही बता देता हूँ, mgh। दिस इज द वर्क डन, ठीक है। अब आपने केस नंबर 2 लिया। केस नंबर 2 में क्या कर रहे हो? अगेन द प्लेटफॉर्म्स आर द सेम, पॉइंट नंबर 2 and point number 1, but now what I am doing is I am taking a path like this। मैं इस मास को पहले यहां लाया, फिर यहां ले गया, फिर नीचे लाया, फिर थोड़ा ऊपर ले गया, फिर लेफ्ट में ले गया, फिर राइट को लाया, फिर थोड़ा सा इधर गया, यूं आया, और बहुत लंबे टाइम तक हंसी मजाक करने के बाद फाइनली यहाँ पे ला करके इसको रख दिया। ये देखिए आप, पहले केस में सीधे ऊपर उठा करके रख दिया, वर्क डन कितना हुआ, mgh। दूसरे केस में इसको खूब घुमा फिरा करके ऊपर ला के रख दिया। अगर आप मेरे से पूछो व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज स्टिल mgh। ऐसा क्यों, कोई बता सकता है क्या? सबसे पहले तो अपन ये क्लियर कर लें कि इन दिस एग्जांपल वेयर द फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स and the displacement is simply the difference between the level of the starting point and the ending point, and it is not depending on the path. The work done in both the cases is mgh, same, not depending on the path taken. So it is the case of a conservative force or conservative system। ये कंजर्वेटिव एग्जांपल, ये तो पहली बात हो गई। पहला एग्जांपल था नॉन कंजर्वेटिव का, वेयर द वर्क डन was depending on the path taken। Second case, the work done was not depending on the path taken, only depending on the initial and final point, that's all। उसको तो कंजर्वेटिव बोल दिया। अब मेरे को फाइनली आप अपना लॉजिक लगा करके बताओ कि इसमें ये पाथ पे निर्भर क्यों नहीं किया, इतना लंबा चौड़ा टाइम लिया, खूब घुमा फिरा करके वापस ऊपर ले जाके रखा, तो इसमें वर्क डन चेंज क्यों नहीं हुआ? एनीबॉडी? Because work done is defined as the force into displacement, and displacement in this case is also h. वो तो इसमें भी मैं डिस्प्लेसमेंट एक्स ही कह दूं, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट एक्स ही है, नीचे वाले में भी, ये देखो। लेकिन यहां तो वर्क डन सेम नहीं था। व्हाट इज डिफरेंट इन बोथ दिस एग्जांपल? सर उसमें देखो सेकंड, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट है। यस, इस वाले में देखो, सेकंड वाले केस में आपकी फोर्स का डायरेक्शन क्या है, नीचे को है। mg इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। वर्क डन कैसे कैलकुलेट होता है? ओनली व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इन और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ही वर्क डन का कैलकुलेशन होगा। जो भी केस में आपने हॉरिजॉन्टल ट्रैवल किया है इस पाथ को फॉलो करने में, उन सारे हॉरिजॉन्टल ट्रैवल के कारण कोई वर्क डन होगा ही नहीं। the only work done will be calculated by the vertical components, and that simply amounts to the vertical displacement h। That is the reason why the work done is still mgh and not the complete length of the path। पहला तो ये। Second reason, there is no resisting force, which is not the case of case 1। यहां पर आपकी जो पाथ आपने फॉलो करी है, इसमें हर टाइम पे जैसे ये पाथ है,
तो आपकी फोर्स यूं लग रही है और डिस्प्लेसमेंट और आपकी डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ को लग रही है। आप यहां से लेके यहां तक आओगे तो फोर्स यूं लग रही है और डिस्प्लेसमेंट यूं लग रही है। यहां से यहां आओगे तो फोर्स यूं लग रही है, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन के लिए इस पूरे पाथ का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सिर्फ सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट से नहीं निकलेगा। और दूसरी बात, इसमें फ्रिक्शन अगर कंसिडर कर ली जाए तो फिर तो ये 100% नॉन कंजर्वेटिव है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन आपकी पहले वाली केस में सिर्फ इतने से इतने टाइम तक लगी और दूसरे वाले केस में इस पूरे पाथ पे फ्रिक्शन लगी, तो इसमें एनर्जी का लॉस भी उतने ही टाइम तक होगा। तो इसीलिए इन सारे कारणों से ये तो बन जाती है पाथ डिपेंडेंट या फिर नॉन कंजर्वेटिव, और ये वाला केस बन जाता है पाथ इंडिपेंडेंट या फिर कंजर्वेटिव। ठीक है। एंड फाइनली, एज अ समरी, अगर कंजर्वेटिव सिस्टम्स और नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम समझ में आ गई तो उसी से आप कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन और एग्जांपल दोनों बना सकते हैं। A force is said to be conservative if the work done by the force on a system that moves between two configurations is independent of the path. Independent of the path, conservative. Dependent on the path, non-conservative. ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज ग्रेविटी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल क्या है? फ्रिक्शन। ठीक है। ये देखो, ग्रेविटेशनल सिस्टम इज कंजर्वेटिव और फ्रिक्शनल सिस्टम्स आर नॉन कंजर्वेटिव। ये चीज समझ में आ गई आपको? कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है। अब उसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की प्रॉब्लम आती है, अनदर स्टेटमेंट दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। नेक्स्ट क्लास में अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। आज अपनी थ्योरी कवर हो जाएगी पूरी इसकी। ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोगों ने पहले ही सीखा हुआ है। व्हाट डज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, बस एक छोटी सी एक एडिशनल टर्म आती है जो आपको अब अपनी डेफिनेशन में ऐड करनी पड़ेगी। व्हेन अ रिजिड बॉडी और अ सिस्टम ऑफ रिजिड बॉडीज moves under the action of conservative forces, this is something that you have to add now. पहले आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे स्टेट करते थे? एनर्जी इज कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ये आपने बचपन में सीखा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का टर्म, और अभी भी आपको शायद यही याद होगा। The universal energy is constant. Energy can neither be created nor destroyed. It can only be changed from one form to another. यही स्टेटमेंट सीखा है ना आपने एनर्जी कंजर्वेशन का? बताओ। सर लेकिन अब अपन मैकेनिकल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट और द पर्सपेक्टिव ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वी विल बी एडिंग दिस टर्म कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट नंबर 1 से लेकर के पॉइंट नंबर 2 तक चलाऊं, कैसे भी ले जाऊं, configuration 1 to configuration 2, I have changed the object, then I am saying that the total energy TE at point 1 and total energy at point 2 will always be equal to each other. This is conservation of energy, provided, यहां पर एक 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 मगर आ गया अब यहां पर, if the forces were conservative। तो सिर्फ कंजर्वेटिव के केस में ही टोटल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट एंड टोटल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट विल बी द सेम इफ यू हैव अ सिस्टम लाइक दैट। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें तो ये बोलता है कि आपकी किस किस तरह की एनर्जीज होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जीज, जैसा मैंने आपको वो ट्री डायग्राम बना के दिखाया था। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आप ऐसे स्टेट कर सकते हो कि तो टी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, इसको ऐसे लिखने की बजाय मैं आपको ऐसे लिख के बता देता हूं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज: kinetic energy plus potential energy of the system is always constant.
ये इसका स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं, तो काइनेटिक एनर्जी को तो काइनेटिक एनर्जी लिख लूं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्ट्रेन या फिर इलास्टिक बॉडीज, दिस इज कांस्टेंट भी लिख सकता हूं, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स आई कैन स्टेट दिस एज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 plus potential energy due to gravitation at point 1 plus potential energy due to elasticity or strain energy at point 1, इन तीनों का सम फर्स्ट पोजीशन पर और सेकंड पोजीशन पर सेम मिलेगा। सो काइनेटिक एनर्जी एट 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन एट 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेन एट 2। इस तरीके से भी आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट दे सकते हैं, और यही चीज अपन अपने न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इन आवर न्यूमेरिकल्स। अब यहां पर जो टेक्स्ट बुक से मैंने लिया है, V को पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूज किया गया है और T को काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज किया गया है। देखो वही सेम चीजें आ रही है, और यहां पर इन्होंने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी को दो में स्प्लिट किया जा सकता है, ग्रेविटेशनल और इलास्टिक। वही अपन ने यहां पर किया है, पोटेंशियल एनर्जी को मैंने ग्रेविटेशनल और इलास्टिक में स्प्लिट कर दिया। इलास्टिक का मतलब स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो हैं अपन आगे की क्लास में करेंगे। वी विल स्टॉप हियर, आई विल टेक योर अटेंडेंस। पहले ये बता दो, आज जो भी अपन ने पढ़ा ये चीजें आपको क्लियर हुई या वर यू कंफ्यूज्ड बाय द कॉन्सेप्ट्स? इज एवरीथिंग क्लियर? Yes, sir.